Prime Minister Narendra Modi and Nepalese PM Sher Bahadur Deuba took part in the foundation stone laying ceremony of the India International Center for Buddhist Culture and Heritage in Lumbini. This is the first visit to the country since ties were affected due to a border dispute in 2020. Relations between the two countries were strained after Nepal's previous KP Oli-led government issued a new political map in which it claimed disputed areas in the Kalapani region as its own. The Prime Minister was received by his Nepalese counterpart today as he arrived in Lumbini. I quote, he offered prayers at the Mayadevi temple on the occasion of Buddha Purnima. The visit is focused on bringing soft power to the center stage of India-Nepal relations while also marking India's formal presence at the holy site that is barely 10 kilometers away from the border. Prime Minister Modi is the first Indian Prime Minister to visit Lumbini. Listen in to what he had to say. नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। On the occasion of Buddha Purnima, Prime Minister Narendra Modi is visiting Lumbini. In fact, his visit started with prayers at the famous Mayadevi temple where Lord Buddha was born in Lumbini. In fact, at the Mayadevi temple, apart from prayers, Prime Minister Modi, along with his Nepalese counterpart, Mr. Sher Bahadur Deuba, they also lit up a lamp at the ancient Ashoka pillar, which is an insignia of the fact that Lord Buddha was born at Lumbini. PM Modi also watered a Bodhi tree plant which was gifted from Bodh Gaya to Lumbini, and after that he went on to inaugurate, he went on to lay the foundation stone of a cultural and heritage center that is going to come up in Lumbini at the UNESCO World Heritage Site. In this center, actually India is going to help Nepal build it up. Both the Prime Minister also unveiled the model, and after that there have been a bilateral meeting between the two Prime Ministers, Prime Minister Sher Bahadur Deuba and PM Modi. Remember, this is the first time that PM Modi is visiting Lumbini and his first visit after the 2020 episode where both the countries developed some friction over the political map which was released at that point of time by the previous Nepal government, in which some of the unsettled borders were shown as the Nepalese territory, and India was naturally upset. But last month the new Prime Minister, Mr. Deuba, visited India, and there has been a fresh push in terms of improving the relationship. In fact, we are here with a group of people from Nepal. They're all excited. They've come here to listen to Prime Minister Modi as he will address the Gandhi Jayanti celebration here. क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा यज्ञ प्रसाद उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं आप? हम यही का है, बुटोल से आए हैं। अच्छा, तो पीएम मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, आज वो एड्रेस करेंगे। माहौल बहुत एक्साइटेड है, लोग बहुत एक्साइटेड है। क्या अपेक्षा रखते हैं भारत से? सब सही है। भारत और नेपाल का तो रोजी रोटी जैसा सब रिलेशन है, दो भाई जैसा है, छोटा भाई बड़ा भाई जैसा है। हम लोग सदियों से चलते आया है, और आज गौतम बुद्ध का बर्थडे है और गौतम बुद्ध का प्लेस में इधर सब इंडिया से तो नेपाल का अच्छा ही रिलेशन है, यही सब अच्छा ही है। आपसे बात करते हैं, शांति की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं संजय बजी में हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष पर्यटन व्यवसायी हूँ। पर्यटन व्यवसायी है। आज जो फोकस है जो बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट को लेके, आज कुशीनगर से मोदी जी चॉपर में आए। कुशीनगर में भगवान बुद्ध को निर्वाणा मिला था। मगर पर्यटन के साथ साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो आज आप नेपाल का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शुरू हो चुका है। वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको हेल्प किया है। तो किस तरह से देखते हैं ये डेवलपमेंट को, क्योंकि एक तरफ इंडिया का एक फोकस है, दूसरी तरफ चाइना का फोकस है। आप लोग जो पर्यटन के व्यवसाय में हैं, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग सारा नेपाली बहुत हर्षित हैं कि हमारे सम्मानीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो रियली एक एनलाइटेड बुद्धा है हम लोगों के लिए,
जो हम लोग उनको इस कदर रेस्पेक्ट करते हैं कि हम लोग 10 साल से चाह रहे थे कि उनको स्वागत करने के लिए, जब से प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने इच्छा भी जाहिर किया था कि लुम्बिनी आने के लिए। चौथी बार में जाकर के ये सफल हो चुका है और हम लोग बहुत हर्षित है और उनके आने से और ये एयरपोर्ट के खुलने से। ये एयरपोर्ट में एक्चुअली चाइनीज़ लगानी नहीं है, इसमें एडीबी और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इन्वेस्टमेंट है और नेपाल सरकार का इन्वेस्टमेंट। इसमें चाइनीज़ का इन्वेस्टमेंट जीरो है। मैं आप लोगों को बता दूं, वो कॉन्ट्रैक्टर है, खाली उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसमें जो एयर कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो गई है आज से लुम्बिनी के लिए। और इन फ्यूचर हम लोग को होपफुल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री के संयुक्त बायलैटरल जो एग्रीमेंट होगा वो उसमें सबसे बड़ा इशू जो ऊर्जा का है, एनर्जी, एंड दूसरा हमारे हिसाब से कनेक्टिविटीज़ का ही होगा। और बुद्धिस्ट साइट्स 4 में से 3 इंडिया में है, एक ही हम लोग का लुम्बिनी में है। तो हम लोग का लुम्बिनी जो है ओझेल में था अभी तक, क्योंकि यहाँ पे एयर कनेक्टिविटीज़ इंटरनेशनल डायरेक्ट नहीं था और रेलवे कनेक्टिविटीज़ डायरेक्ट नहीं था। तो अभी मोदी जी के आने से हम लोग को इतना विश्वास है कि इंडिया और नेपाल का जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होगा और हम लोग का जो बुद्धिज़्म टूरिज्म और नेपाल भारत का टूरिज्म दोनों तरफ से ये बाय एयर, बाय रेलवे, बाय एयर हम लोग का और इसमें बढ़ोतरी होगा, हम लोग को पूर्ण आशा है। आपसे बात करते हैं, आखिरी सवाल। नेपाल में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट में एक आज कुछ युवाओं से बात कर रहे थे तो एक शंका भी है नेपाल में कि जैसे जिस तरह से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं तो नेपाल में एक शंका है कि श्रीलंका जैसा माहौल ना बने। तो आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं और इसमें भारत क्या रोल प्ले कर सकता है डेवलपमेंट में या फिर इन्वेस्टमेंट में? मेरे विचार में मैं क्या बोलता हूँ कि जो भारत का तरफ से, हमारा तरफ से ये जो आपकी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज का स्पेशल दिन है, उसमें मोदी जी का आगमन हमारे लिए अत्यंत ही हर्षित दिन है, ऐतिहासिक है। इसमें हम क्या चाहते हैं कि भारत को भी कुछ अच्छा होएगा, हमको भी अच्छा होएगा। वैसा टाइप का बिजनेस है ना, जो विश्व को आदमी जो विश्व भर से इधर आता है तो फिर बेनिफिट तो होना चाहिए। वैसा हाल का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट और क्या हो सकता है उसमें सफल करके कोई एक दोनों भाई को, दोनों सीमित राष्ट्र के लिए फायदा हित के लिए कोई समझौता कर लिया जाएगा तो हम उसमें और बड़ हर्षित हो जाएंगे। So there you are, this gentleman clearly saying that despite increasing Chinese investment in Nepal, they want India to play a bigger role, and particularly in tourism, in developing the Buddhist tourist circuits. And perhaps today when Prime Minister Narendra Modi will address hundreds of people, not only from Nepal but also from India, people have come, and other countries from Lumbini, he will send across a message which will be India's focus in terms of how it is looking at not only the Indo-Nepal relationship but the larger neighborhood, because this will be Modi's thrust on his neighborhood plus neighborhood first policy.